Hearty greetings and welcome all to the third session of Innovative Thinking and Positivity. The theme today is Knowing the Superpower, and Dr. Archana is our guest speaker today. So welcome, Sister Dr. Archana. Sister Chaya, Dr. Archana को co-host बनाए. Welcome, sister. Subject of superpower is not a small one. Just a day before, we had some program at our college, and our former principal sir was invited over there. And in his valedictory session, he was sharing a few ideas about, I would say, spiritual sciences only. And there he mentioned that there are two worlds, and both are real worlds. One is the world where we are living in, जिसको हम कई बार कहते हैं स्थूल वतन है, ये सब कुछ हम देख सकते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, फिजिकल बॉडीज हैं, दे आर things which we can feel, which we can touch, tangibles हैं, but there's a lot more about, let's say, intangible or what we say invisible वर्ल्ड, जिसको हम एक लैंग्वेज में ब्रह्मांड बोलते हैं. शास्त्रों में हम सुना होगा, हमारे बच्चों ने भी कहीं वर्ल्ड अपने पेरेंट्स से, ब्रह्मांड जिसको हम देख नहीं सकते, वो हमारी रीच से बहुत बाहर है, वो भी एक रियल वर्ल्ड है, वो भी एग्जिस्ट करता है. लेकिन हम जब स्पिरिचुअल साइंस में उसको पढ़ते हैं तो हम उसे मन और बुद्धि की आंख से जानने की कोशिश करते हैं. वही साइंस है बेसिकली, कोई टूल्स नहीं है टू हाउ टू नो अबाउट दैट द रियलिटी ऑफ दैट वर्ल्ड, बट मन और बुद्धि की साइंस जो है, उसको हम स्पिरिचुअल साइंस भी कहते हैं, उससे हम उसे जान पाते हैं. तो बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक सर शेयर कर रहे थे. आज हमारा टॉपिक है नोइंग द सुपर पावर. वो कुछ मिलता जुलता है, दो इट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट. हम बहुत गहरे डीप में तो नहीं अभी एकदम जा सकते, बिकॉज बहुत डीप सब्जेक्ट है. मे बी लेटर ऑन इन फ्यूचर if we continue like this, then maybe हम इसको और आगे extend करेंगे. So welcome, sister, with these words, and I invite Rachna to please do the formal welcome and start the session. Am I audible now? Yes. Okay. Thank you, Sheetal ma'am. A very pleasant greetings, everyone. I, Rachna Gupta, on behalf of the Wellness Cell of Maharaja Agrawal College, Commerce Department, welcome you all to the third session of our lecture cum workshop on innovative thinking and positivity in association with the Rajyog Education and Research Foundation, RERF Brahma Kumari of Palam, Bihar Education Center, which was created to propagate the principles of truth, non-violence, and spiritual values. In the previous session, we learned about thought process. We understood how the thought process works and how we can always think positive to motivate ourselves. The topic for today's session is knowing our supreme power. You cannot understand the glories of the universe without believing there is some supreme power behind it. So with this, I would like to introduce you to the speaker for today's session, Dr. Archana, an expert faculty from Palam, Bihar. She has given a series of lectures on mind management, stress-free living, value-based administration, maintaining high self-esteem, to name a few. With her 18 plus years of experience, she has helped many people on the path of personal growth and knowledge of meditation, and her love-filled approach has motivated number of souls to re-evaluate their attitudes. I also welcome Dr. Arunjal Kasab and Sheetal Sachdev ma'am. I hope everyone is ready for today's fruitful session. So without any further delay, I would like to hand over the platform to our today's keynote speaker, Dr. Archana. Over to you, ma'am. Thank you, Rachna ji, and thank you, Sheetal ma'am. So today we'll start with the supreme power. So children, I'd like to know from you all, what do you think about the supreme power? What is it? Do you have anything? Let it be an interactive session. I'll request all to please be free to answer my questions. Only then you'll enjoy the session more, and you'll understand it more clearly, because it's not so easy subject, right? It's easy, but may not be easy also, right? So let us understand, or we can just say, कि समझ लेते हैं कि आखिर who is the supreme power here, or normally we are talking about the supreme power. The supreme power,
Anyone would like to answer this question? What do you think is supreme power? Or in other names, we can say supreme power. We also say God, right? Supreme power means God. And how many gods should be there? Is there any difference in capital God and small god? हम भगवान दो तरह से लिखते हैं, small god and capital God. कोई difference है क्या? Why it is at times we write with capital G, why at times we write with small g? Is there any difference? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आपके रिस्पॉन्स. It will be very nice if you answer me. जो भी आता है आपको समझ में, please answer it so that we can move on. Capital G means the authority, right? The Almighty. जो Almighty है, उसको हम capital G से लिखते हैं. और small g से भी write gods and goddesses. उसमें gods आता है, God में s नहीं लगता capital G वाले में. But small g में जब हम लिखते हैं तो gods and goddesses, there are so many. But we all say God is one. हम सब यही कहते हैं ना, भगवान एक है. बहुत सारे धर्म है, पूरे विश्व भर में बहुत सारे लोग different gods को मानते हैं. But still we say God is one and we are all children of one Father. Don't we say like this? हम सभी ये कहते हैं ना, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है. We are children of one Father. That's why there's a brotherhood prevailing in this world. We all say we are all brothers. How come we are brothers? We are brothers because we all belong to one Father. Is it clear? Am I right? Any doubt in this? Any doubt in this? Can we say God is one? Can we say yes? Okay. So I believe this answers from all the students here and everyone who's attending this class. Okay. So God is one, right? And we normally say God is omnipresent. God is everywhere. God is everywhere. Is it also correct? When He is my Father, means He should be having some place to live also. उसका घर भी होगा. Should be, no? वो है तो उसका घर भी होना चाहिए. Right? और वहीं से उसको आना चाहिए. Whenever we call Him, because अगर वो हमारे पास है तो उसे बुलाने की जरूरत नहीं है. But हमने देखा है कि हम सभी मंदिर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, we go to temples, बहुत दूर दूर तक जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, उससे मिलने के लिए उन मंदिरों में. अगर वो हमारे पास हमेशा ही है तो वहां तक जाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब उसका कोई तो घर है. हम उसके घर में ही, मंदिर को क्या कहते हैं, भगवान का घर बोला जाता है ना, तो उसका भी कोई घर है जहां से वो आता है. फिर एक बात और भी, दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं कि किसी भी रास्ते से जाओ, कोई सी भी धर्म से जाओ, उस तक तो पहुंच ही जाएंगे. Until and unless, suppose I want to meet Sheetal ma'am, right? There's so many Sheetals in the world, so many, right? But which one I want to meet? अगर मुझे उनका परफेक्ट एड्रेस नहीं पता होगा, उनका फोन नंबर नहीं पता होगा, मैं उनको कांटेक्ट नहीं कर सकती. Chances are more that I'll contact some other wrong Sheetal, because अगर मैं डायरेक्टली खोली तो उसमें बहुत सारे शीतल मिल जाएंगे. I only know Sheetal, right? मुझे पूरा नहीं पता, so I'll contact anyone. But will it be okay then? जो मुझे उनसे चाहिए, जो गाइडेंस, जो नॉलेज, जो भी कुछ मुझे उनसे एक्सपेक्ट में कर रही है, वो मुझे दूसरी शीतल से नहीं मिल सकता, राइट? मुझे उनसे ही मिलेगा जो मुझे चाहिए. आज भी हम लोग बहुत दिन तक उसको ढूंढ रहे थे. We all said हमें भगवान से मिलना है. हम सब कहते हैं भगवान को जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. We want to know who he is. We want to know he is. हम उससे मिलना चाहते हैं. अगर हमारे पास ये तो मिलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम सब मिलना चाहते हैं. तो जरूर वो कोई डिफरेंट है जिसको हम अभी तक नहीं जानते. उसके नाम से हमने बहुत लोगों को याद किया, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच पाए. इसीलिए we were deteriorate हो रहे थे. हमारी जो
अगर हम कैरेक्टर देखें तो उसमें भी डाउनफॉल हो रहा है, हमारी सारी चीजों में डाउनफॉल हो रहा है। आज we have become so this thing, we have learned about the soul, ना, the soul has become so weak these days. छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, छुई मुई की तरह। we have become so sensitive. इतना ईगो हाई कैसे हुआ? we have become so sensitive. छोटी छोटी बात पर मूड ऑफ हो जाता है। why this? बिकॉज जिसको ढूंढ रहे थे, जो पावर हाउस है, उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसको जानते ही नहीं थे, और इसलिए हमारी जो बैटरी थी वो डिस्चार्ज होती चली जा रही थी। और आज हम इस स्टेज पर पहुंच गए कि दैट हमको बहुत सारी बीमारियां, ज्यादातर मेंटल डिजीजेस हैं, और हर चीज का प्रॉब्लम कहते हैं इट्स ऑल साइकोसोमेटिक। तो वो सब कुछ उसको जानना जरूरी हो जाता है। अभी तक हमने अपने बारे में कुछ जाना था, हमने जाना था कि वी आर ऑल अच्छा। सो एक बात जो बात कर रहे थे कि हमने जाना था कि किसी भी रास्ते से पहुंचेंगे उस तक पहुंच जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। वो कोई शिमला की पहाड़ी तो नहीं है ना कि किसी भी रास्ते से चढ़ जाओ शिमला के टॉप पर पहुंच जाएंगे, शिमला तक पहुंच जाएंगे। इट्स नॉट दैट। वी नीड टू हैव द करेक्ट वे। हमें सही रास्ता उस तक जाने का पता होना चाहिए। रास्ता, उसके घर का परफेक्ट एड्रेस पता होगा तभी हम पहुंच सकते हैं, कहीं से भी नहीं पहुंच सकते। परमात्मा के बारे में लोगों ने बहुत कुछ बोला। इट इज समथिंग लाइक कि किसी को सपोज कुछ ब्लाइंड पीपल है ना, उनको एक स्टोरी बताते, देवर ब्लाइंड पीपल, 6 ब्लाइंड पीपल थे। उनको एक हाथी के पास जाकर खड़ा कर दिया। जिसके हाथ में जो आया हाथी का पार्ट, उसने सोचा, उसने हाथी को वैसे एक्सप्लेन कर दिया। किसी के हाथ में उसकी पूंछ आई तो उसने बोला कि हाथी कैसे है, रस्सी की तरह है। किसी के हाथ में उसके कान आए तो उन्होंने कहा ये तो मैट की तरह है। किसी के हाथ उसकी पीठ पर पड़ा तो दे सेड इट इज लाइक अ वॉल। किसी का हाथ उसके पैरों पर पड़ा तो उसने कहा कि ये तो खंबे की तरह है, इट्स लाइक अ पिलर, हाथ एक पिलर की तरह। तो लोग जिसके हाथ में जैसे समझ में आया, जिसको थोड़ी सी नॉलेज, कुछ हमें कहीं से मिलता गया, क्योंकि हमारे किसी ने भी परमात्मा को या सुप्रीम पावर को परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया। और जिन्होंने किया भी है तो हमारे पास उसकी हमारी अपनी जो एनर्जी थी वो इतनी लो थी कि हम उसे सही सेंस में समझ नहीं पाए। राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे व्हाट द सुप्रीम पावर इज। Right. So I request Chayaban, please open the slide. इससे पहले हम जानेंगे, कल हमने इस सेशन से पहले समझा था कि we are human beings, right? Human beings, human plus being. Human जो 5 तत्वों से बना हुआ था, made up of 5 elements, या जो ह्यूमस से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ, और being part, the energy part है ना। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ह्यूमन बीइंग बनता है। अब उसमें से जो बीइंग पार्ट निकल जाता है तो वो ह्यूमस रह जाता है, सिर्फ वो बॉडी रह जाती है, एंड इट्स इनएक्टिव। विदाउट द बीइंग द बॉडी कैन नॉट वर्क। हमने ये समझा था बिकॉज उस बीइंग पार्ट में माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार था। जब माइंड, सोल निकल गया तो उसके साथ माइंड भी निकल गया, इंटेलेक्ट भी निकल गई। तो उस बॉडी के साथ, उस डेड बॉडी के साथ, उसको कॉर्पस बोलते हैं, उसके साथ हमने कुछ भी करा, उसने कभी रिएक्ट नहीं करा। लेकिन जब वो सोल उसके अंदर होती है तो रिएक्ट करता है। सोल का फॉर्म भी हमने समझा था कि सोल इज पॉइंट ऑफ लाइट, इज दैट एनर्जी, द कॉन्शियसनेस। राइट? अब हम देखते हैं कि जैसा सीड होता है उससे वैसा ही फल निकलता है, तो उसका वैसा ही पेड़ होता है और वैसे ही फल निकलते हैं, है ना। अगर एप्पल का सीड है तो उससे एप्पल का प्लांट ग्रो होता और एप्पल का ट्री बन जाता। बनाना के सीड है तो उससे बनाना का पेड़ निकल जाएगा, है ना। सिंपल। सेम वे, नेक्स्ट प्लीज चेंज। इसी तरह से अगर हम देखें तो गाय का बच्चा है तो वो गाय के जैसा है, तो इंसानों का बच्चा है तो इंसानों जैसा है। राइट? इसी तरह इफ आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, I the soul is point of light, how should be my father? What should be the shape of my father? Please change the slide. What should be the shape of my father? Yes, please. Anyone? चाइल्ड और पेरेंट एक जैसे होते हैं, अभी तक हमने समझा है। तो हमारा फादर कैसा होना चाहिए? If I am child of God, the point of light, how should be my father?
बिग एनर्जी, ओके एनर्जी। और भी कोई आंसर देंगे? ओके यू फाइन। और भी कोई आंसर देंगे? यस प्लीज, देख सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन सी द पिक्चर एंड आंसर इट। यस प्लीज, एनीवन प्लीज कम अप। Please write your answer in the chat box, or you can unmute yourself and reply. Atma, Paramatma, Atma, agar, no, I'm asking about the shape, you know. Soul is point of light, right? Your father, God. Okay, your father is God, fine. But what, how should he be like? उसको देखने में वो कैसा होना चाहिए? अगर मैं point of light हूँ, I the child is point of light, तो मेरा पिता कैसा होना चाहिए? शेप के बारे में बताएं। Yes, please, simple. You can see the picture. If I am point of light, my father should also be point of light. Right? But what is the difference between me and him is, मुझ मेरे में और परमात्मा में क्यों डिफरेंस है? I am soul, he is supreme soul, right? तो he is supreme लग गया ना, means he is supreme in his attributes. उनका aura दिख रहा है, you can see the bigger aura. Point is same, the size of the point is same, but there is difference in the aura. जैसे बच्चे और पिता में सोल का साइज एक ही होता है दोनों में, लेकिन ऑर्गन्स बड़े छोटे होते हैं, यही डिफरेंस होता है ना बच्चे में और बड़े में। सोल जो है वो साइज बड़ा नहीं हो जाता बड़े होने के बाद। पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी तो एनर्जी उतनी रहती है, लेकिन सिर्फ उसका जो उसका साइज, ऑर्गन्स का साइज है वो बड़ा छोटा होता है। इसी तरह से सोल इज पॉइंट ऑफ लाइट, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, बट सुप्रीम इन हिज एट्रीब्यूट्स। परमात्मा अपनी गुणों और शक्तियों में सागर है, ही इज ओशन इन हिज एट्रीब्यूट्स। क्लियर? इसलिए उसका ऑरा बहुत बड़ा बताया और हमारा ऑरा छोटा बताया, क्योंकि अभी हमारे पास जो उसके कंपैरिजन में आत्मा के पास जो क्वालिटीज है वो कम है, कम है ना हमारे पास। वी आर नॉट ओशंस, वी आर लाइक हिम बट नॉट ओशंस। हम उसके जैसे हैं लेकिन ओशन नहीं है। You must have learned in that soul chapter, consciousness, that we are knowledgeful, loveful, peaceful, blissful, pure, powerful, right? You've learned about the qualities of the soul, है ना? हमने सोल के बारे में जाना था कि हमारी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। So we are knowledgeful, but our father is, हमारा पिता, the God जिसको हम बोलते हैं, he is ocean of knowledge. We are peaceful, but he is ocean of peace. We are loveful, but my father is ocean of love, ocean of knowledge, ocean of powers, ocean of, he's ocean in his attributes. समझ आया? वो अपने गुणों में ओशन है और उससे हम सब कुछ ड्रॉ करते हैं। जैसे एक बच्चे को कोई चीज की जरूरत होती है तो कहाँ जाता है वो? अपने पेरेंट्स के पास जाता है, उसको जो भी कुछ चाहिए होता है। सेम वे व्हेन वी डिप्लीट आवर एनर्जीज, है ना, चाहे वो पीस एनर्जी है, लव एनर्जी है, हैप्पीनेस है, जब हमारे पास नॉलेज है, जब हमारे पास कम होता है तो हम किसके पास जाएंगे? वी नीड टू कनेक्ट टू अवर फादर, द सुप्रीम फादर, पावर हाउस इसको बोल सकते हैं। जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारे अंदर करंट फ्लो होता है और हम उससे फुल हो जाते हैं। अभी पीसलेसनेस है ना, वी से देयर इज लॉट ऑफ पीसलेसनेस इन द वर्ल्ड। शांति नहीं है, प्यार नहीं है, शक्तियां नहीं है, नो वन कैन टॉलरेट, नो टॉलरेंस, नो पावर, दिस इज व्हाट वी से ना, हमारे अंदर सारी शक्तियां खत्म हो गई, राइट? जो हमारे गुण, हमारी क्वालिटीज थी ना, जब उनको एक्शन में लाते तो पावर्स बन जाती। तो वी से वी हैव बिकम देयर नो पावर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पावर खत्म होगी, पीसलेस हो गए, तो ओशन ऑफ पीस से कनेक्ट करेंगे, पीसफुल हो जाएंगे, है ना? इट इज समथिंग लाइक कि कहाँ कनेक्शन करना है, कनेक्ट किससे? जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो यू कनेक्ट और उससे वो चार्ज हो जाता है। हमने आज दिन तक भी भगवान को तो याद करा है डिफरेंट डिफरेंट नेम से, भगवान समझकर उसे याद किया, लेकिन हमने जो कनेक्ट करा तो जिस पॉइंट पर डाला था वहां पर करंट नहीं आ रहा था, तो वो डिस्चार्ज ही रहा और हमें लगा कि हमारा तो, हमने तो प्लग इन किया हुआ है
तो वो चार्ज हो जाएगा, लेकिन वो राइट कनेक्शन, उस करंट, उस प्लग में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था, तो चार्ज होने का तो सवाल ही नहीं था। तो हम फोन यूज करे जा रहे थे तो एनर्जी तो डिप्लीट हो ही जा रही थी, लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही थी, राइट? क्लियर? तो परमात्मा को थोड़ा और जानते हैं। चेंज द स्लाइड। ये हमने समझ लिया, आगे चले। परमात्मा, जिसको हम भगवान भी कहते हैं, है ना, भगवान भी कहते हैं। भगवान का अर्थ क्या है, क्यों बोलते हैं उसे भगवान? क्यों? वो भगवान है जो 5 एलिमेंट से परे रहता है, who lives beyond the 5 elements, जो 5 एलिमेंट्स के अंदर आता ही नहीं है, राइट? ही इज बियॉन्ड 5 एलिमेंट्स। जो हमने शीतल मैम ने बताया भी पहले कि there are 2 worlds, 2 real worlds, the world where we are living today, and there's another world which is where the soul resides, right? इस वर्ल्ड को हम corporeal world बोलते हैं, because here we are with the body where there's touch, feeling, sound, music, everything. And there is the world which is silent, there's no sound, it's ever pure, ever peaceful. That's the land of peace, right? That's the 6th element, जिसको हमने ब्रह्मांड बोला। सो भगवान जो 5 तत्वों से परे, भा से भूमि, गा से गगन, आ से अंबर, ना से नीर, वा से वायु, राइट? भगवान 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों के पिंजरे में नहीं आता। कहते हैं ना, सोल जो आत्मा है वो 5 तत्वों के पिंजरे में कैद है, लेकिन परमात्मा इन 5 तत्वों से परे है, वो कभी इसकी कैद में नहीं आता, राइट? वो भाग्य बनाने वाला है। हम यही कहते हैं ना, भगवान हमें भाग्य बनाता है हमारा, और भाग्य बनाने वाला है। और वो भाग्य कैसे बनाता है? वो हमें हर चीज की समझ देकर हमारा भाग्य बनाता है। वो आके हमारा भाग्य लिखता नहीं है, वो समझ देता हमें कि आप अपना भाग्य खुद से ड्रॉ करो। जैसा भी आपको भाग्य बनाना है, आपको भाग्य अपने आप से बनाओ। वो हमें कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने का तरीका सिखा देता है, बस। ही इज अ टीचर। वो हमारा फादर भी है, तो वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा गुरु भी है, राइट? तो फादर बनके वो हमारे को अपनी सारी क्वालिटी, सारा प्यार देता है, और टीचर की तरह वो हमें शिक्षाएं देता है, टीचिंग्स देता है। टीचिंग्स किस लिए देगा? आपको अपना श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए। तो वो हमें भी, वो हमारा भाग्य, हमारे जब टीचर्स हमें पढ़ा देते हैं, तो वो हमें पढ़ा के वो हमारे को इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बना देते हैं, डिग्री नहीं पकड़ाते, वो हमें उस लायक बना देते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो जो आपका एम है वो आपको अचीव कर सको, वो उस लाइक, उसके लिए आपको तैयार कर देते हैं। फिर आप अपनी जर्नी खुद तय करते हैं। यू हैव टू, वो पढ़ा कर देते हैं, समझ दे देते हैं, फिर आप उसको खुद पढ़ते हो, खुद अपने कॉम्पिटिशन फाइट करते हैं, और खुद उस पर जो भी आप बनना चाहते बन जाते हैं। सेम वे हमारा पिता भी है, वो आके हमें शिक्षाएं देता है, वो हमें समझ देता है इनफैक्ट कि कैसे कर्म करना चाहिए, व्हाट आर द राइट कर्मास through which you can attain the best destiny, the highest destiny, the divinity. Highest destiny is we can attain divinity. वो हमें सिर्फ समझ देकर जाते हैं, राइट? परमात्मा, उसको आप समझते हैं कि वो कौन है, ठीक है? तो वो हमें भाग्य बनाता नहीं है, भाग्य बनाने की समझ, श्रेष्ठ कर्मों की समझ दे देता है, जो हम स्वयं करते हैं और अचीव करते हैं अपने श्रेष्ठ भाग्य को, श्रेष्ठ डेस्टिनी, डिजायर्ड डेस्टिनी को, राइट? सो गॉड इज, उसको हम अगर दूसरे शब्दों में समझे तो गॉड इज, कैसा समझा हमने? गॉड इज निराकार, राइट? इनकॉर्पोरियल। गॉड इज इनकॉर्पोरियल, पॉइंट ऑफ लाइट। इसके पास शरीर नहीं, उसका नाम भी दूसरे बहुत सारे शास्त्रों में उसको एक्सप्लेन कैसे किया है कि वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। अजन्मा, जो किसी मां के वूम से जन्म नहीं लेता, ना किसी से कुछ लेता है,
उसे किसी से कुछ ना कोई शिक्षाएं लेता है किसी से, ना उसके माँ बाप हैं जो उसको पालना करे, किसी से वो कुछ नहीं लेता। वो अब करता है, वो कर्म भी नहीं करता, वो कर्म कराता है हमारे द्वारा, क्योंकि हमें अपना भाग्य बना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो ये सृष्टि उसने हमारे लिए बनाई है। वो तो इस नाटक का, इज क्रिएटेड दिस ड्रामा, और उस ड्रामा का डायरेक्टर है। सो ही इज ऑलवेज आउट ऑफ द ड्रामा, है ना, डायरेक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ द ड्रामा, ही इज आउट ऑफ द ड्रामा। और वो, बट ही इज द बेस्ट एक्टर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जिसको हम ऑस्पिशियस टाइम कहते हैं, ऑस्पिशियस एज कह रहे हैं इस समय को, इस समय वो आकर हमें अपनी समझ देता है, गिव्स अस द नॉलेज, द ट्रू नॉलेज ऑफ द सेल्फ and ourselves, the soul and the supreme soul, right? So वो कर्म करता नहीं है, क्योंकि उसे भाग्य नहीं बनाना, वो तो आउट है ड्रामा से। हमें अपना भाग्य बनाना है, तो वो हमें कर्म करना सिखला देता है। वो हमारे द्वारा श्रेष्ठ नॉलेज के थ्रू हमसे कर्म कराता है, समझ देता है, कभी हमें टच भी करता है, बताता भी है कि हमारी जैसे इनर कॉन्शियसनेस हमें बताती है, डू दिस, डोंट डू दिस, डू दिस, डोंट डू दैट, राइट? तो जब हम अपनी इनर कॉन्शियसनेस को सुनते हैं, तो हम सही कर पाते हैं, गलत कर पाते हैं। कभी कभी हम उसको ओवर पार कर लेते हैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपनी वीकनेस की वजह से, और हम रॉन्ग कर्म कर लेते हैं, बिकॉज राइट करने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है, वो नहीं होती, तो हम रॉन्ग कर्म कर लेते हैं, हमें लगता है वो इजी शॉर्टकट है, लेकिन उससे हमारा भाग्य भी खराब हो जाता है। जो डिजायर्ड डेस्टिनी है हम उसको अचीव नहीं कर पाते, या उसमें वो सक्सेस नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं। Okay, so he is point of light and ocean in his attributes. Yeah, please change. Next, what do you think he is? Shaivat, please change. Now, भगवान को लोगों ने बहुत सारे इन फॉर्म्स में भी हम सब ने याद किया। इनको हम गॉड्स बोलते हैं ना, राम है, कृष्ण है, बहुत सारे देवी देवता, हिंदू माइथोलॉजी में तो बहुत कुछ है। हमने उनको भगवान की तरह पूजा। गुरु नानक है, क्राइस्ट है, इब्राहिम है, मोहम्मद, सो मेनी, इतने सारे फॉर्म्स में हमने भगवान को पूजा। लेकिन ये सब भगवान ने बोला कि मैं कौन हूं? आई एम जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। एवरीवन एल्स हु हैव दिस फिजिकल बॉडी आर माय चिल्ड्रन। हम सब जो इस शरीर के साथ हैं, जिनके पास अपना शरीर है, परमात्मा के पास अपना शरीर नहीं है। God doesn't have his own body. He incarnates in another body to share this knowledge with us. But we souls have our own bodies. हमारे पास अपना शरीर है, and we use our own organs. I the soul use my organs. This body belongs to me. तो मैं अपने organs खुद यूज कर रही हूँ, लेकिन God Almighty परमात्मा के पास अपने organs नहीं होते। अब हमने इन सबको देखा, the pictures in front on your screen, इनके पास अपने शरीर हैं, एंड हमने ये भी देखा कि ये सब भी तपस्या ही कर रहे होते। तपस्या करना माने किसी को याद कर रहे हैं, जिनसे पावर, याद करना माने किसी से कनेक्ट कर कर अपने अंदर वो पावर्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो पावर्स ले रहे हैं, राइट? वो उनसे सुप्रीम पावर से कनेक्ट करके पावर्स ले रहे हैं। सो हम बच्चे ही तो जाते हैं ना उसे पावर लेने के लिए, तो दे आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्राइस्ट ऑलवेज सेड आई एम चिल्ड्रन ऑफ, आई एम सन ऑफ गॉड। क्राइस्ट ने तो कभी बोला ही नहीं मैं भगवान हूँ। गुरु नानक देव ने भी नहीं बोला, उन्होंने तो परमात्मा को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, निर्वैर निर्कर्ता अभोक्ता। उन्होंने ये अजन्मा सब कुछ उन्होंने अपनी सुखमनी किस्में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है सारा कुछ परमात्मा को। अब हमने उनकी बातों को समझने के वजह, सच्चे में परमात्मा कौन उसको समझने के बजाय हमने उनको और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा हमने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। उसकी पूजा करने से तो कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने जो नॉलेज दी थी उसको तो हमें अपनी लाइफ में एम्बाइब करना था, उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आज दिन तक हमने रामायण पढ़ा, गुरु सब कुछ ये सब पढ़ा, हमने बाइबल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन इनको पढ़ने से तो हमारी लाइफ में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हमने सोचा ये उनकी लाइफ है। लेकिन उनकी लाइफ से एक्चुअली तो वो हमें कोई शिक्षाएं दे रहे थे, उन शिक्षाओं को, उस लाइफस्टाइल को हमने अपने जीवन में एम्बाइब करते तो हमारा जीवन परिवर्तित होता, राइट?
जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन बातों को, उनकी जो श्रेष्ठ आचरण थे, उनका जो श्रेष्ठ कैरेक्टर उनमें मेंशन्ड है, उनको हमें अपने जीवन में इम्बाइब करना था, तभी हम वो सत्य को अपने जीवन में ला सकते थे। राम राज्य चाहते हैं तो राम जैसा आचरण तो चाहिए ना, राम जैसे संस्कार चाहिए होंगे, तभी तो संसार बदलेगा ना। संस्कारों से संसार बनता है, तो जैसे संस्कार वैसा संसार है। तो हमें जब तक हम उनके वो संस्कारों को हम अपनी लाइफ में इम्बाइब नहीं करेंगे, हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। तो जब हम उनकी बातों को नहीं समझे, तो परमात्मा को साकार में आना पड़ा इस धरती पर, क्लियरली समझाने कि आप सबको सत्युग चाहिए, आप सबको सुखमय जीवन चाहिए, तो सुखमय जीवन के लिए आपको उस तरह का संस्कार भी अपने जीवन में इम्बाइब करने पड़ेंगे। जो राम के, गुरु नानक देव के उनके संस्कार हमने देखे हैं, पढ़े, उनको अपने जीवन में इम्बाइब करना पड़ेंगे। राइट, आगे चलेंगे। हमने आज भगवान को और भी नीचा, जिस भी तत्व से भी हमें खुशी मिली, आगे जाए छाया बहन, आगे हमें जिस भी तत्वों से भी, जिससे भी खुशी मिली, तो चांद था, नदियां थी, सूर्य था, पेड़ थे, है ना, जिस भी चीज से हमें कोई भी प्राप्ति हुई, हमने उन सबको क्या बोल दिया, ये देख रहे हैं, अग्नि से किसी से भी कोई प्राप्ति हुई तो हमने बोल दिया वो भी भगवान है, क्योंकि भगवान दाता है, देने वाला। ये हमें पता है कि वन हु इज ऑलवेज गिविंग, हु नेवर आस्क फॉर एनीथिंग, हु इज ऑलवेज गिविंग, गिविंग एंड गिविंग इज गॉड। तो जिस चीज से हमें जो कुछ मिलता रहा तो हमें लगा वो भगवान ही है। बरगद के पेड़ों को पूछा, क्योंकि वो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। हमने पेड़ों को पूछना लगा। गाय से हमें दूध मिलता है, गाय से, तो हमने गाय को भी पूछना शुरू कर दिया, वो हमारी खेती में भी काम आते हैं, बहुत कुछ में, तो हमने गाय को भी पूछना शुरू कर दिया। नदियों से पानी मिलता है, उनको भी पूछना शुरू कर दिया। अग्नि से भी हमें एनर्जी मिलती है, अग्नि, तो हमने उसको भी पूछना शुरू। गुरुओं से हमने कहा वो वरदान देते हैं, तो उनसे भी पूछना शुरू, आशीर्वाद देते हैं। जिससे हमें कुछ थोड़ी सा भी सुख की प्राप्ति हुई तो हमने उसे भगवान का नाम दे दिया। लेकिन क्या ये सब भगवान हो सकते हैं? ये अगर अच्छा सुख देते हैं तो इनसे नेगेटिव भी हो रहा है। फ्लड्स आ जाते तो भगवान क्यों नहीं बोलते फिर उन्हें? अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, तब भगवान कहाँ चला जाता है? भगवान वो होता है जो सदा और सदा सिर्फ सुख ही देता है, उसे भगवान कहते हैं। जो सदा किसी भी हालत में वो हमें सुख देता है। हम अपने जीवन में जो दुख पाते हैं ना, तो हमने बोला भगवान ने दुख दिया, नहीं, किसी का भी माता पिता अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते। तो वो भगवान है, सर्वोच्च सत्ता, हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऑल माइटी है, वो कैसे हमें दुख दे सकता है? हम दुख अपने नेगेटिव कर्मों की वजह से पाते हैं। नेगेटिव कर्म हमने सोचा हमारी नेगेटिव सोच की वजह से है। हम गलत सोच रहे हैं, आई एम थिंकिंग लो, मैं किसी के बारे में गलत सोची जा रही, बोले जा रही, तो मेरी एनर्जी डिप्लीट हो गई। अब मैं सोचूं मुझे इस वक्त खुशी महसूस होनी चाहिए, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक मैं किसी के लिए दुआएं नहीं दूंगी, मैं ब्लेस एनीवन, मैं किसी का कुछ कर देती हूँ, किसी की मदद करती हूँ, आई फील हैप्पी, क्योंकि वहां दिया है भगवान का वो कैरेक्टर। जब मैं यूज करती हूँ, व्हेन आई स्टार्ट गिविंग, आई फील हैप्पी, राइट। अपने प्योर संस्कार जब इमर्ज करते हैं तब आई फील हैप्पी। नेगेटिविटी से हैप्पीनेस नहीं आ सकती, राइट। आगे देखते हैं, ये शायद है। फिर हमने बोला गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। इज गॉड ओमनी प्रेजेंट? पिक्चर में आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, क्या इन सारी चीजों में भगवान है? हमने बोला आज दिन तक भगवान कण कण में व्याप्त है, इज ओमनी प्रेजेंट। क्या इस नाइफ में भगवान है? क्या इस पिस्टल में भगवान हो सकता है? क्या ये जो कुत्ते बिल्ली और ये सब दिख रहे हैं, इनमें भगवान है? आपके घरों में चूहे हो जाते तो आप तो चूहे मारने की दवाई डाल देते। हमारे घर में कोई फालतू कुत्ता आए तो उसे हम क्या करते हैं? उसको भगाने के लिए करते हैं। बिल्ली आए तो दरवाजे बंद करके रखते हैं। भगवान को आने से कौन रोकता है? चोर आते हैं तो हम उन्हें तो उनको पकड़ कर पुलिस को भी दे देते हैं, और हमको ना आए उसके लिए हम बहुत सारी सेफ्टी सिक्योरिटी आजकल ध्यान रखते हैं इन चीजों का। सिगरेट के लिए बोलते सर ड्रग वी शुड नॉट यूज इट, उससे क्या लंग्स कैंसर हो जाता है। अगर इन सारी चीजों में भगवान है तो उससे नेगेटिव कर्म क्यों होते हैं? यस प्लीज, एनीवन?
What do you think? Is God omnipresent? वो सब जगह है? Anyone, please? आंसर करें. What do you think? God is omnipresent? होना चाहिए God को इन सब में? Yes, please. Please answer, anyone. आपको जो भी समझ में आता है आप इस चैट बॉक्स में लिखिए. यही तरीका है इसको और समझने का. जितना भी आपको समझ में आ रहा है, आपका इंटेलेक्ट जो भी आंसर करता है उसे प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में. अनम्यूट करके बताइए. And if you agree with me, it's okay. If you do not agree, it's not necessary to agree with me, right? You come up with your view. If you do not disagree, please come up. Anyone, please share. Please come up. Renu, you like to answer? Kashish, you like to answer? कुछ समझ आया आपको या नहीं आया? जानवी, Elisha, Arun, Yash, anyone, please come up. Aditi, Mahi, Kartik, Kartika, Kajol, Tisha. Yes, you believe in what? Omnipresence or what? He's omnipresent? Yes is for what? He's omnipresent or he's not omnipresent? Yes, Mahi? He's not omnipresent. I think this is from all, right? So he is not omnipresent. Clear? He is not, he cannot be omnipresent. फिर हमने बोला हमारे अंदर आपके अंदर भी भगवान है. Right? We do number of times we do wrong. Right? Yes, ma'am, again for not or yes? He's omnipresent? What do you mean to say yes? See, if he is in me and is in you, तो अगर आपके अंदर मेरे अंदर है, अपना भगवान को बुलाते हैं ना हर समय, तो बुलाने की क्या जरूरत है? मेरे अंदर है, मैं उससे वहीं से आंसर ले सकती हूँ. वो मुझे वहीं से मदद कर सकता है, लेकिन नहीं करता. Everyone can unmute themselves. आप unmute कर सकते हैं और बता सकते हैं. You can share your answer. So, अगर मेरे अंदर आपके अंदर दोनों के अंदर भगवान है, तो हम भगवान को बुलाने की जरूरत ही नहीं है. हम समय समय पर उसे बुलाते रहते हैं. ओ गॉड प्लीज कम हेल्प मी, ओ गॉड प्लीज कम हेल्प मी. बुलाते रहते हैं. एग्जाम होता है, कुछ होता है, बुला लेते हैं उसे. आज प्लीज हेल्प मी, क्या करूं प्लीज हेल्प मी, है ना. फिर तो वो मेरा ही है, मेरे अंदर ही है, तो मेरे पास तो करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होता है ना, क्योंकि वो इन सब में नहीं हो सकता. He has his own house. जैसे मेरा पास अपना घर है, ऐसे उसके पास भी अपना घर है. He also has, there's a place where he lives, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं. वहां that is the land of souls हमने बताया. ब्रह्मांड, ब्रह्म में रहने वाली, वहां उसका नाम ही इसलिए पड़ा. अंड मीन्स सो द एनर्जी का फॉर्म कैसे अंडे जैसा है ना, थोड़ा ज्योति की तरह है. जो आप फ्लेम उसमें देखते हैं, दीपक लगाते हैं अपने घरों में, उसका फ्लेम कैसा होता है, वैसा होता है. तो अंडे जैसा सॉर्ट ऑफ हुआ, इसलिए इसको ब्रह्म में रहने वाली अंडे जैसी आत्मा है ना. शेप बता दिया उसमें, पॉइंट ऑफ लाइट्स, इसलिए उसको ब्रह्मांड बोला. और एक ही घर होगा जहाँ पिता और बच्चे तो एक साथ ही अपने घर में रहते हैं ना, तो हमारा पिता भी उसी ब्रह्मांड का रहने वाला है. इसलिए दैट लैंड इज कॉल्ड द ट्रू लैंड, है ना. एंड दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स. इस दुनिया को वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अविनाशी नहीं है, इमॉर्टल नहीं है. सब कुछ पेरिशेबल है. आज ठीक है, आज नया लाए, थोड़े दिन के बाद पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फेंक देंगे, है ना. आज लेकर है, कल टूट गया, खत्म. इस दुनिया में हर चीज पेरिशेबल एक्सेप्ट फॉर द सोल, राइट. ये इम्पेरिशेबल, इमॉर्टल है.
लेकिन बारिश इसलिए इस दुनिया को इल्यूजन बोला। से अगर मेरे और अंदर आपके अंदर भी होता भगवान, तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं? फिर तो हम फादरहुड की बात होनी चाहिए थी, ब्रदरहुड की तो नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे के एक बच्चे को एक पिता हो सकता है, लेकिन एक पिता के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। क्लियर? एक पिता के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का, एक बच्चे के बहुत सारे पिता नहीं हो सकते। क्लियर? चेंज करें चाहे। इफ यू ऑल हैव एनी डाउट प्लीज कभी भी आप इसको अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना जरूरी है कि भगवान कौन है। ही इज नॉट एनी फिजिकल फॉर्म, he is just point of light. We need to change our concept. God means point of light, the immortal one, right? तो हम ही इसको रियल, जब हमें इस क्लियर नॉलेज होगी तभी हमें कौन सा लेंस मिला है, नॉलेज का। जैसे बोला कि उस लैंड को भी देखने के लिए यू नीड, मैम से नीड माइंड एंड इंटेलेक्ट, मीन्स यू नीड अ डिवाइन माइंड, है ना, एक नॉलेजफुल माइंड चाहिए, नॉलेजफुल इंटेलेक्ट होगी तभी आप किसी को देख सकते हैं। हर चीज को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए होती हैं, एक्चुअली बहुत सारी चीजों को हमें फील करना पड़ता है। जैसे दिस द एयर अराउंड यू, आप ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, विदाउट दिस एयर यू कैन नॉट सर्वाइव, बट कैन वी सी दिस एयर अराउंड? हम नहीं देख सकते ना इस एयर को। करंट फ्लो हो रहा है हमारे इसमें वायर्स में, लेकिन क्या हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सिर्फ वो करंट, उसका रिजल्ट दिखता है। हाँ, लाइट जल रहा है तो लगता है हाँ हाँ करंट फ्लो हो रहा है, पंखा चल रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, पंखा बंद हो गया तो कह रहे करंट ऑफ हो गया, है ना। इसी तरह से परमात्मा को या आत्मा को, सोल को या सुप्रीम सोल को, वी कैन नॉट सी थ्रू दीज फिजिकल आईज, बट वी कैन सी देम थ्रू आवर डिवाइन इंटेलेक्ट, through the eye of the knowledge. Okay, we can see through the eye of the knowledge, not through these physical eyes. Okay, is it clear? So now think over the attributes which help us to identify him, attributes of God which help us to identify him. Few I have already said. And how is the soul related to God? That also I've just said. We say we are all children of God. आज दिन तक हम भगवान को बहुत दूर का समझते थे. We used to be God fearing. हमें डर लगता था उसके पास जाने से. हमें लगा हमने छोटी गलती कर दी तो हमसे बहुत नाराज होगा, बड़े बड़े पनिशमेंट्स देगा. No, it is not that. वो हमारा पिता है. अपने, जैसे आप अपने माँ बाप के पास जाकर जब अपनी रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो माँ बाप फिर उसको सिर्फ प्यार से छोड़ देते हैं आपको कि कोई बात नहीं, आपने समझ लिया कि यू आर रॉन्ग, तो उन्होंने माफ भी कर देते हैं वो साथ में, या एक साथ में थोड़ी समझ दे देते हैं. परमात्मा भी तो पिता है ना हमारा. गॉड इज ऑल्सो अ फादर. वो हमें पनिशमेंट्स नहीं देता. जिनको हम पनिशमेंट समझ देते हैं कभी कभी, वो छोटे छोटे वो टेस्ट पेपर्स हमारे पास देता है टू मेक अस स्ट्रॉन्ग or sometime to realize our mistakes, right? He somewhere we are wrong, check yourself, change yourself. वो प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो छोटे छोटे टेस्ट पेपर्स वो हमें देता है जिससे कि हम अपने आप को जज कर पाए where we are wrong और करेक्ट कर पाए. He is always loving, so we all should be God loving. No, there's no need to fear. वो मेरा है, he is my father. He belongs to me. He's my father. Take it like that, and you feel the difference in your life. He's always with me. God, because He is point of light, He can always be with me. हम लोग जो कहता है, लोगों ने जो कहा, जहां देखो वहां तू ही है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि I can feel him around because his powers all are around. Whenever I remember him, जब भी मैं उसे याद करें मुझे उसकी मदद मिल जाती है. तो हमने सोचा वो मेरे साथ ही है, वो चारों तरफ है.
नहीं, वो उसकी पावर्स हमें जैसे हम उसे याद करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एंड उसके वो फ्लो हमारे अंदर आ जाता है, उसका, उसकी वो एनर्जीज, उसकी वो पावर्स हमें मिल जाती है, और हम उस जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बात होती है, उस वक्त वो शक्ति मिल जाती है और हम अचीव कर लेते हैं अपने गोल को. इट इज समथिंग लाइक दैट. क्लियर? यस प्लीज चेंज Shaiben. So let us understand the attributes. And God is one who is accepted by all. God is one and he is accepted by all. How? ज्योति के फॉर्म में, द फॉर्म ऑफ लाइट ही इज एक्सेप्टेड बाय ऑल. हर किसी ने उसको ज्योति के फॉर्म में ही डिस्क्राइब किया. लाइक मुस्लिम सेज गॉड खुदा नूर है, नूर माने लाइट. क्राइस्ट सेड गॉड इज लाइट. गुरु नानक सेड एक ओंकार सतनाम. एक ओंकार मीन्स द वन हु इज लाइट, राइट. एंड देन हमने भी बोला ज्योतिर्लिंग, राइट. ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग में लिंग जो ज्योति के समान है. लाइट, गॉड इज लाइट, उसमें भी बोला. हम अपने घरों में पूजा करते हैं, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले पहले ज्योति लगाते हैं. हमारे घर में ज्योति का इंपॉर्टेंस बहुत है भारतवासियों के यहाँ. कोई कैंडल लगा रहा है, कोई अगरबत्ती लगा, लेकिन है तो फॉर्म ऑफ लाइट ना. कोई हवन कर रहा है, इट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइट. हर किसी ने परमात्मा को उसके ज्योति स्वरूप में, उसके लाइट स्वरूप को ही एक्सेप्ट किया. लाइक कृष्ण, he will not be accepted by all the souls of the universe. Christ is also not accepted by all the souls of the universe. And you can say Buddha is not accepted by all the souls of the universe. Lekin the form of light, God, the Almighty, the light form of God is accepted by all souls of the universe. So God should be one because he is father of all the souls of the universe. So his form should be such that is accepted by all the souls of the universe. Right? He should be accepted by all. वो सभी को मान्य होना चाहिए. तो वो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वमान्य है. And then he is a liberator, ना? जैसे बोला, he liberates us from the sins, the wrong that we do. उसकी याद से, उसको याद करने से हमारे जो नेगेटिविटी है वो क्लियर होती जाती है. We are able to come out. We can liberate ourselves from the sins. Then he is eternal, अनंत अविनाशी है. जैसे आत्मा के लिए समझा, he is eternal, immortal. तो सदा सदा, eternal भी जो सदा सदा, who is ever there, ever, हमेशा ही है. Yes, please change छाया. Then सबसे ऊंचा उसके रहने का स्थान, सब तो उसके एट्रीब्यूट्स पे ऊंचा है, उसकी क्वालिटी से मतलब सबसे ऊंचा है. तो वो उसके रहने का जो स्थान है वो भी सबसे ऊंचा है. उसकी महिमा में यही बोला जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा तेरा क्या है, रहने का स्थान. ठाम, ठाम माने रहने का स्थान. वो ब्रह्मांड जो इस ग्लोब से बहुत ऊपर, यूनिवर्स लेयर्स है, सॉरी, जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स, उससे भी बहुत मच बियॉन्ड इन द पोलर इज दिस रीजन. इसको हम सोल वर्ल्ड बोलते हैं या ब्रह्मांड बोलते हैं. वहां पर वो रहता है. और ऊंचा काम है, कौन सा काम है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता. Everyone is fighting, struggling for peace these days and happiness, right? He is the only one. वो एक ही है जो विश्व में आके शांति स्थापित करता है. We are all talking about peace. So many peace conferences हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में. पीस के लिए लोग हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं हो रही, अशांति ही बढ़ती जा रही है. लेकिन वो जब आता है तो वो आके इस दुनिया को क्या पीसलेसनेस हटा देता है, कंप्लीट पीसफुल वर्ल्ड दोबारा से रीएस्टैब्लिश करता है. He transforms this negative world, this peaceless world, into a peaceful world. The world of hatred and negativity changes into the world of love and happiness, of purity, of peace, of positivity. This is what he can do. This is only he can do. वो ही कर सकता और कोई नहीं. God is ever stable and unchangeable. बोला है, he is forever. वो सदा के लिए. Yes, please change Shaiben. इन सब लोग फॉर्म में भी जाने, इसको चेंज कर दिए, बता चुके इसके बारे में.
सुप्रीम एट्रीब्यूट्स, उसके एट्रीब्यूट्स और थोड़े से जानते हैं. ही इज ओशन. ओशन इन एट्रीब्यूट्स बता दिया. ही इज सीड ऑफ ह्यूमन ट्री. ही सीड ऑफ ह्यूमन ट्री. क्यों बोला सीड? क्योंकि जैसा वो है, जैसा सीड होता है ना, वैसे ही फल होते हैं, वैसे ही पेड़ होता है. उसके पेड़ की क्वालिटी उसके सीड से देखी जाती है. तो वो इतना अच्छा है, इसलिए हम सोर्स भी बहुत अच्छे थे. लेकिन विद टाइम हमारी एनर्जी डिप्लीट हो गई, क्योंकि हम अपने को भी भूल गए और उसको भी भूल गए. तो कनेक्शन नहीं हो पाया. वी लॉस्ट दैट कनेक्शन और उसके से हम डिप्लीट हो गए. ही इज द सर्वनाइजर ऑफ गीता. वो उसने ही गीता ज्ञान, सच्चा जो गीता ज्ञान दिया वो परमात्मा ने ही दिया. Then वो हमें दुख हरता, सुख करता है. वो हमारे दुखों से हमें मुक्त करके हमें सुख देता है. Right? And rest is ocean. Is ocean in all forms. हम समझ लिया बाकी points. Please change. Then where he lives, we learned about the soul world also. You can see the three worlds: the soul world, the subtle region, and the corporeal world. Right? So he lives there in the soul world. You can see him, the bright shining light, the bright star. Yes, please change with this. The Brahmand is golden red in color. Golden red in color. And there are so many crores and millions of souls there. 800 crore souls around. Right? इतनी souls वहां रह रही हैं. उसमें ऊपर देख रहे हो, very bright star. That is the Supreme Father. That is the Supreme Father. Right? Yes, please change. Yeah, please change. Here the three words, we have seen this. Change and there's life only on Earth, right? We say there's life on Mars also. No, it's only on Earth. And this is the only place where he comes from. परमात्मा इसी दुनिया में आता है और इस दुनिया को श्रेष्ठ बनाता है. Right? He transforms this world. He transforms the souls and transforms the world. जैसे ही soul transform होती है, हमारी energy, soul energy negative to positive होती है, वैसे ही ये दुनिया भी negative से positive बन जाती है. This is the great work that he does. उसका ये बड़ा occupation है जो कोई और नहीं करता. So now are we clear with the occupation, the form of the God and his occupation, the purpose of his coming to this world, and when is the time when he comes? दुनिया में हम नहीं जानते थे भगवान के बारे में ना, कौन है, कब आता है, क्या करता है, कैसे करता है. So he does everything through us. तो हर कर्म हमसे कराता, उसको कहते हैं करन करावनहार. वो कर्म करता नहीं, वो करवाता है. Right? Thank you all for listening. Before we go to the meditation, I'll just know if you're all clear with it. Okay, let us sit in silence for 2 minutes. Just visualize a tiny point of light between the brows. Give a thought, accept this. I am the point of light, bright, peaceful, loveful being. And feel the powers of the Supreme showering on you. महसूस करें जैसे स्वयं परमात्मा जो आपके सिर के ऊपर है, गोल्डन शाइनिंग स्टार, उससे बहुत सारी शक्तियां, पावर ऑफ पीस एंड लव एंड हैप्पीनेस आपके ऊपर बेस्टो हो रही है, आपके ऊपर फैल रही है. Receiving these powers from the Supreme. Feel the shower of love and happiness. Accept him as your father. He's sharing his powers with you. Feel that. उसकी शक्तियों को स्वयं को भरपूर करें. The energy of peace,
and purity. White color going down the body, silvery white energy going down the body parts. Feel that. To the point, down to the face, arms से होते हुए fingertips तक, neck से नीचे chest में, and slowly going down to the abdomen. Abdomen से पैरों से होते हुए तक to the toes. Relaxing you. Feeling peaceful. You're actually light and light now. जैसे कि flesh की body खत्म हो गई. It's all light all over. The star between the brows shining, silvery body, very pure and light. Very peaceful. In the state of peace, you have developed the power of acceptance. इस शांति में I can accept all. जो है, जैसे है, अच्छे हैं. I accept myself also. मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ. मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ. I'm satisfied with myself and with others. No complaints, no problems, just peace. And with this peace, I'm feeling happy and light. Withdraw this energy from the toes upwards, up to the abdomen, to the chest, and again to the point of light, to the point between the brows. I'm peaceful, I'm laughing, I'm blissful, I'm powerful. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, sister. %99 इक्वल है, जितना हम जानते हैं वो 1% है. तो उसको जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है ना? तो ऐसी 2-3 चीजें और भी हैं जिसको हमने पॉइंट वहाँ पे एक वर्ड यूज किया, सटल वर्ड. तो सटल वर्ड जो है, ये 2 वर्ड के अलावा एक और वर्ड है, सटल वर्ड, विच लाइज इन बिटवीन दिस स्थूल वतन जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी से अर्थ, और जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, इसको हमने कहा ब्रह्मांड. ये 2 के बीच में एक और वर्ल्ड भी है, सटल वर्ल्ड. तो मैं जरूर आशा रखती हूँ कि आगे चलकर जब हम और इस टाइप के टॉपिक्स या थीम्स पर काम करेंगे, बात करेंगे,
तो इसको हम कनेक्ट कर रहेंगे और आगे कि ये जो नॉलेज है, रिलीजन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्पिरिचुअलिटी है जो हर रिलीजन का एक सोल है, आई वुड से, और है हर रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी की ही बात की गई है। समझना जरूरी है कि सोल क्या है, सुप्रीम सोल क्या है, हम भी एनर्जी हैं, वो भी एनर्जी है, तो डिफरेंस कहाँ है, कहाँ हम कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। और मैं देख रही हूँ कि हमारे टीचर इंचार्ज डिपार्टमेंट है डॉक्टर अरुण जुल्का हमारे साथ हैं, और डॉक्टर प्रीति गोयल हैं हमारे बीबीई डिपार्टमेंट से, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरुण जुल्का से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ शब्द हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बोलें और थोड़ा सा इंटरेक्ट करें हमारे साथ, सबके साथ। May I request you, sir? Yes, Dr. Sheetal. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Thank you, Dr. Archana. आपको सुना अच्छा लगा, और आई थिंक बच्चों में ये जो बात है, मैं काफी आपके लेक्चर को, शुरू के पार्ट को, देखिए आई एम टीचर ऑफ कॉमर्स और मैं ज्यादा मेडिटेशंस वगैरह में नहीं करता कुछ, बट मैंने जब आपका लेक्चर सुना तो मुझे लगा कि जैसे कि मैं पीके मूवी भी देख रहा हूँ साथ साथ, राइट? क्योंकि काफी कुछ आपने जो बताया मानने वाली बात है आज की डेट में, जो एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, दैट्स टू गुड। और वाकई ही मानने वाली बात है कि आज की डेट में जो जितने भी बच्चे हैं हमारे, उनकी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा जा रही है। हाउ टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, आई थिंक दे विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। एंड शीतल मैम हमारे यहाँ हमेशा ही बच्चों को मोटिवेट करती रहती हैं वेलनेस के लिए, तो हमें शीतल मैम से काफी और उम्मीद है कि बच्चों को और भी मोटिवेट करेंगे और इस तरफ से डायरेक्ट करेंगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Arun sir. We'll try our best, but of course with the support and cooperation of you and the college, it will be possible, and we'll do it. We'll keep doing it. And Preeti ma'am, if you are there, please say a few words. Chaya, Sister Chaya, please make Preeti ma'am host or co-host. Dr. Preeti Goel. I think she's not here. She's not here, sister. She has left. Yeah. Fine. Yes, over to you, Rachna. Please do the formal vote of thanks. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Sister Dr. Archana, for this fruitful session. Thank you, Sister Chaya, for providing technical support. I thank Dr. Arun Julka, sir, and Sheetal Sachdev, ma'am, and all student and faculty members for joining the session. Looking forward to see you all in our next session, which will be held on February 12th at the same time, 4:15 p.m. Thanks you all. Thank you all. Thank you, and Om Shanti. Thank you, and Om Shanti.